अब फ्लैट ढूंढ रहे हैं तो हर जगह का कंसर्न यही है कि बैचलर्स नहीं अलाउड है। मेरा क्वेश्चन ये है कि बैचलर्स अलाउड नहीं है, मगर क्यों? हमने ऐसा क्या कर दिया कि बैचलर्स अलाउड नहीं है? मेरे कंटाप मारा था पत्थर से और मेरे कान के पर्दे फटे हुए हैं, या तो कान से मुझे सुनाई दे रहा है। हमारा बहुत सारा सामान उठा के नीचे फेंक दिया, तो बाहर शूज़ वगैरह रखे थे। हमारे घर से बहुत सारा सामान गायब हो गया है और अभी हमें पता नहीं एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि हम जा नहीं पाए उस दिन के बाद से अंदर। तो अमिताभ बच्चन के एक ऐड था कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, तो वो गुजारो गुजरात तो इस तरीके से गुजारना तो मैं तो नहीं चाहूँगा। रात में इन्होंने लाइट काट दी, हमारे घर में सीसीटीवी लगा है उसको बंद करवा दिया, लाइट काट दी। और उसके बाद ज़बरदस्ती सोसाइटी की सारी महिलाओं को लेके ये हमारे फ्लैट में आ गए। लगभग 40 महिलाएं, जिसमें नाबालिग बच्चियां भी थीं और औरतें भी थीं। यहाँ पर क्या चल रहा है, किसका क्या माइंडसेट है, मुझे खुद ही इतनी मल्टियाँ बनाई हैं, कोई घर है नहीं है, हम ढूंढने के लिए जाए तो कहीं मिलता नहीं है, पीजी का खाना बेकार है। इसने वीडियो बनाई हमारी मेरे को मारते हुए, तो इसका फ़ोन छीन के एविडेंस डिलीट कर दिया और रिसाइकिल बिन से भी हटा दी, और उसके बाद हमें मारा। और हमसे क्यों? आप ऑनर से बात करो, ऑनर ने हमें रूम दिया, ऑनर से बोलो कि ये चीज़ है, इस वजह से है और हमें इनको बाहर कराओ। ऑनर बोल देंगे, हमें डिपॉजिट दे देंगे, हम चले जाएंगे। और उन्होंने हमें धमकियाँ देना स्टार्ट करा। ये ऑफिस जा रहे थे राजदीप, तो इनका ऑटो रुकवा के धमकियाँ दी कि ऑटो से बाहर निकलो और तुम्हें नहीं जाने देंगे। उन्होंने कम से कम 20 से 25 यहाँ पे मारे, थप्पड़ मारे, कंटाप मारे। उसके बाद से हम बाहर सड़क पे ही रह रहे हैं, पुलिस थाने में सो रहे हैं या फिर किसी ऑटो वगैरह में सो रहे हैं, फुटपाथ पे ही बैठे हुए हैं। उस दिन से 3 दिन से मैंने एक कपड़े पहने, मैं ऑफिस नहीं गया हूँ, इसने भी वही पहने हैं। ये कपड़े फटे आपको दिख रहे होंगे, ये चोट के निशान, हमें मारा गया था, पीटा गया था रात को पुलिस કોન્સ્ટેબલ के સામે। બહુ જ બધી સોસાયટી મોટાભાગે શહેરોમાં એવા નિયમો લઈને આવી રહી છે કે ભાઈ અમારા બાળકો પર ખરાબ અસર પડે ને એટલે અમે બેચલર્સને ઘર નથી આપવા માંગતા. અને જો સોસાયટી આ પ્રકારના નિયમ બનાવી રહી છે તો એ નિયમો દરેક માલિક સાથે લેખિતમાં વાત કરો, કેમ કે ઘરના માલિક આપી રહ્યા છે ઘર ભાડે. આપણે સપનું જોઈ રહ્યા છીએ, આપણે લક્ષ્ય રાખીને બેઠા છીએ. ગિફ્ટ સિટી કે પછી ધોલેરા સર જેવા પ્રોજેક્ટની વાત આવે ત્યારે ગુજરાતીઓ ગર્વથી માથું ઊંચું કરે છે અને પછી એવું કહે છે કે અમે દેશને આ આપ્યું. પણ આપણે જ્યારે કશું કાપી રહ્યા છીએ ત્યારે કેટલાય લોકો છે સાથે સાથે કે જે અહીંયા કામ કરવા માટે પણ આવે છે. હિન્દી ફિલ્મમાં બહુ સરસ મજાનું ગીત આવે છે કે લાખ લુભાએ મહેલ પર આए, अपना घर तो अपना घर है. પણ છતાંય રોજગારીની તકો માટે, સપના માટે, કોઈક લક્ષ્ય હાંસિલ કરવા માટે માણસો બહાર નીકળતા હોય છે. મહારાષ્ટ્ર અને તમિલનાડુ જેવા રાજ્યોમાં ભાષાને લઈને ખૂબ વિવાદો થયા. એ સિવાય બહારથી આવેલા માણસોને હેરાન કરવાના જ્યારે પ્રશ્નો ખૂબ બધા થયા ત્યારે ગુજરાતના બહુ બધા વિડીયોઝ વાયરલ થયા કે ગુજરાતીઓ એવી પ્રકૃતિના માણસો કહેવાય કે કોઈ એને એડ્રેસ પૂછશે હિન્દીમાં તો એ સામે હિન્દીમાં એને ભલે આવડે કે ન આવડે, ભાગ્યું તૂટ્યું હિન્દી બોલીને પણ એને છે કે એના એડ્રેસ સુધી મૂકી આવશે સામેથી અને ઉપરથી કાં તો ચાપે ઉડાવીને મોકલશે. આ પ્રકારના સ્વભાવની વાત થઈ. અને એની વચ્ચે આજે મારી સાથે સ્ટુડિયોમાં બે એવા છોકરાઓ અત્યારે બેઠેલા છે કે જે એક યુપીથી, એક મધ્યપ્રદેશથી ગુજરાતની ગિફ્ટ સિટીમાં એક એમએનસીમાં નોકરી માટે આવ્યા. નોકરી માટે આવ્યા એટલે એમને ઘર લેવાનું હોય, ક્યાંક રહેવાનું હોય. એમણે ઘર ભાડે લીધું. ગિફ્ટ સિટીની અંદરનો જે પ્રોપર એરિયા ગિફ્ટ સિટીનો છે ત્યાં તો ભાડું ખૂબ વધારે હોય. એટલો બધોય પગાર નથી મળતો ગિફ્ટ સિટીમાં કામ કરતા માણસોને કે એ લોકો 70-70 હજાર ભાડું ભરી શકે. એટલે એમણે રાયસણ પાસે, ગાંધીનગરમાં રાયસણ પાસે એક જગ્યાએ ફ્લેટ ભાડે લીધો અને રહેવાનું શરૂ કર્યું. હવે દરેક સોસાયટી નિયમ બનાવી રહી છે કે અમે બેચલર્સને ઘર નહીં આપીએ. ઘર લેતી વખતે એ માણસોને ખબર નથી હોતી. બંને છોકરાઓ જે સ્ક્રીન પર દેખાય છે, એક અભિજીત સિંહ છે, એક રાજદીપ છે. રાજદીપ મધ્યપ્રદેશથી છે, અભિજીત ઉત્તર પ્રદેશથી છે. અને એ લોકો 2 દિવસથી ઘર વગરના છે. રસ્તા પર રોકાઈ રહ્યા છે, આમથી તેમ ભટકી રહ્યા છે કેમ કે એમની સોસાયટી એમને વગર કોઈ કારણે કાઢી મૂક્યા છે. અને એટલે જ એમની પાસેથી પહેલાં समझीશું. और अभिजीत, आपसे समझते हैं. सबसे पहले आपकी स्टोरी बताइए कि आप कहाँ से हैं, गुजरात में क्या सोच कर आए थे, कब से आए और क्या हुआ आपके साथ? बिल्कुल, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद ये स्टोरी पिकअप करने के लिए। मेरा बैकग्राउंड यूपी से है, मैं यूपी की राजधानी लखनऊ से रहने वाला हूँ। और मैं लास्ट 3 साल से नोएडा, मोहाली, इंदौर और उसके बाद अब गिफ्ट सिटी आया हूँ। मुझे यहाँ से अपॉर्चुनिटी आई तो मुझे बहुत लोग ने कहा कि नहीं, पूरा डिफरेंट हो जाएगा कल्चर, वहाँ पे खाना अलग है, मीठा खाते हैं, तुम नहीं सर्वाइव कर पाओगे, अपने पर्सनल स्टोरी शेयर करें। पर मुझे था कि ऐसा नहीं है कि लोग वहाँ सर्वाइव नहीं कर रहे, तो मैं भी जाके कर लूँगा, आखिर सर्वाइवल ह्यूमन का नेचर होता है, तो मुझे था कि ट्राई करना है।
तो मैं यहाँ पे आया और स्टार्टिंग में मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसा आपने बताया कि लोग यहाँ पे हेल्प करते हैं, तो बहुत सारे हेल्पिंग नेचर के लोग भी मिले। बट अभी अचानक से जिस सोसाइटी में रह रहा था, उनका तो मुझे पता नहीं क्या माइंडसेट है और वो किस बैकग्राउंड से आए हैं, किस लर्निंग से आए हैं वो, कि बिल्कुल ही अपोज़िट चलते हैं। उन्होंने हमें काफ़ी टाइम से अचानक से हैरेस करना स्टार्ट कर दिया, कि धमकियाँ देनी स्टार्ट कर दी कि ये आप खाली कर दो, आप यहाँ बिलॉन्ग नहीं करते हो, ये सोसाइटी का पर्सनल रूल है। हमारे पास एक वैलिड रेंट एग्रीमेंट है, ओनर का कंसेंट है, एनओसी है, पुलिस वेरिफिकेशन है, बैकग्राउंड अच्छा। चेक्स हैं, सब कुछ है। उसके बावजूद उनके पास कोई ऐसा रीज़न नहीं है जो हमने गलत काम करा हो। हम कोई नशा, दारू, पत्ती कुछ नहीं करते। हमने कभी किसी अनजान को फ्लैट पे नहीं बुलाया है, रुकने का मौका नहीं दिया। उसके बावजूद उनकी डिमांड है कि ये फ्लैट खाली कर दो। उनके धमकियाँ ना मानने पर, क्योंकि हम गलत नहीं थे और हमारे पास लीगली सपोर्ट था, तो उन्होंने अभी रिसेंटली 21 तारीख की बात है, हमारे फ्लैट की बिजली काट काट दी। दी। पहले भी ये बहुत बार करा है। हमने अपने ओनर को ये चीज़ें बताई। बहुत ज़्यादा होने पर उन्होंने एक लीगल नोटिस भिजवाई 19 तारीख को। हुँ। 19 तारीख को नोटिस भिजवाने के बाद फिर वो लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने हमें धमकियाँ देना स्टार्ट करा। ये ऑफ़िस जा रहे थे राजदीप, तो हुँ। इनका ऑटो रुकवा के धमकियाँ दी कि ऑटो से बाहर निकलो और तुम्हें नहीं जाने देंगे। ओह! और बड़ी मुश्किल से ये ऑफ़िस पहुँचा, रात में 1:30 बजे की हमारी शिफ्ट होती है। तो क्योंकि हम यूएस प्रोजेक्ट हुँ। के लिए काम करते हैं, तो बहुत डर गए थे हम, क्योंकि रात का समय है, बिल्कुल खाली रहता है, कोई सपोर्ट नहीं था। उसके बाद अगले दिन सुबह भी जब हम सोसाइटी में गए, तो गार्ड ने हमें रोक दिया कि आप अलाउड नहीं हो यहाँ पे, और चेयरमैन को कहा कि ये लोग ज़बरदस्ती अंदर घुस रहे हैं, और हमें वेट करने को कहा। क्योंकि हम गलत नहीं थे, तो हम फिर भी नहीं रुके और हम अपने फ्लैट में चले गए। रात में इन्होंने लाइट काट दी। हमारे घर में सीसीटीवी लगा है, उसको बंद करवा दिया, लाइट काट दी, और उसके बाद ज़बरदस्ती सोसाइटी की सारी महिलाओं को लेके ये हमारे फ्लैट में आ गए। लगभग 40 महिलाएँ, हुँ। जिसमें नाबालिग बच्चियाँ भी थीं और औरतें भी थीं, और ज़बरदस्ती हमारे फ्लैट में घुस गए। हमारा कुक था, उसको पता नहीं था, तो उसने गेट खोल दिया और ज़बरदस्ती फ्लैट में घुस गए। लाइट बंद थी, कैमरा कोई एविडेंस है नहीं हमारे पास, और चिल्लाने लगे। हमारा बहुत सारा सामान उठा के नीचे फेंक दिया, 2 बाहर शूज़ वगैरह रखे थे। हमारे घर से बहुत सारा सामान गायब हो गया है, और अभी हमें पता नहीं एग्ज़ैक्टली क्या है, क्योंकि हम जा नहीं पाए उस दिन के बाद से अंदर। उस अच्छा, आप उसके बाद से नहीं जा पाए? उसके बाद से हम बाहर सड़क पे ही रह रहे हैं, पुलिस थाने में सो रहे हैं, या फिर किसी ऑटो वगैरह में सो रहे हैं, फुटपाथ पे ही बैठे हुए हैं। उस दिन से 3 दिन से मैंने एक कपड़े पहने हैं, मैं ऑफ़िस नहीं गया हूँ, इसने भी वही पहने हैं। ये कपड़े फटे आपको दिख रहे होंगे, ये चोट के निशान, हमें मारा गया था, पीटा गया था। रात को पुलिस कांस्टेबल के सामने, और पुलिस कांस्टेबल भी भीड़, क्योंकि 70-80 लोगों के नीचे जमा हो गई थी, जिसमें बच्चे, बूढ़े, मर्द, पुरुष सारे, महिलाएँ सारे थीं, तो वो भी कुछ नहीं कर पाए भीड़ में। इसने वीडियो बनाई हमारी मेरे को मारते हुए, तो इसका फ़ोन छीन के एविडेंस डिलीट कर दिया और रिसाइकिल बिन से भी हटा दी, और उसके बाद हमें मारा। और उसके बाद हम जब वहाँ से निकलने लगे, तब भी हमें रोका स्पेशली, और जो स्पेशली उस सोसाइटी में एक एडवोकेट है, डीके चौहान नाम से, उसने इसके पेट पे प्रॉपर लात मारी और इसकी नसें खिंची हुई हैं, अब तक दर्द है। मेरे कंटाप मारा था पत्थर से, और मेरे कान के पर्दे फटे हुए हैं, या आधा कान जिससे मुझे सुनाई दे रहा है। मेडिकल रिपोर्ट में 108 डायल करके हॉस्पिटल में गया, तो डॉक्टर ने इमरजेंसी में चेकअप करा, तो कह रहा है आपके कान का पर्दा फट गया, लगभग 1 से 1.5 साल लगेगा हील होने में। तब तक कोई इस पे पानी नहीं जाना चाहिए, कोई लिक्विड नहीं जाना चाहिए यहाँ पे। कान कनेक्टेड होता है नाक और मुँह से, तो कोई कितना ही लिक्विड अवॉइड करेगा। बाद में वो कह रहे हैं सर्जरी भी करानी पड़ सकती है, या तो फिर मशीन लगवानी पड़ सकती है। तो अभी ये मेरा पूरा हिस्सा सोने दर्द कर रहा है, पूरी बॉडी एक हो रही है, क्योंकि पीठ में मुक्के, घूंसे और फट्टों से मारा था हमें। और उस टाइम पे भी वीडियो वगैरह सब डिलीट है, तो कोई एविडेंस नहीं है। और बाकी बैचलर्स को भी मारा है उन्होंने, जिन्होंने थोड़ी सी भी उनको कहा कि हमें जाने दो, या कुछ भी हल्का सा भी अपना एफर्ट दिखाया, तो उनको भी बहुत मारा। मतलब जिसने भी अपना ये अधिकार दिखाया कि भाई मैं जाऊँगा क्योंकि मैंने रेंट पे किया है, तो आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? जी, तो बिल्कुल। जिन्होंने रेज़िस्ट किया उन सबको मारा? बिल्कुल। ओके, आपके घर में कौन-कौन है? उन घर पे पता है ऐसा कुछ हुआ है? घर पे मैं नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं घर पे बताऊँगा, तो मेरी माताजी इतने स्ट्रॉन्ग दिल की नहीं है मेरी तरह, कि वो इन बातों को डाइजेस्ट कर पाएँ, और या तो वो खुद यहाँ चले आएँगे, या मुझे वहाँ बुला लेंगे, और एक करियर गैप आ जाएगा। जो इतनी मेहनत करके मैं स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, फिर वो करियर गैप आ जाएगा, मैं जस्टिफ़ाई नहीं कर पाऊँगा आगे क्या-क्या हुआ था। और ईएमआईज़ हैं, फाइनेंसेस होते हैं, फ्यूचर प्लानिंग होती है, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, वो सब पॉज़ हो जाएँगे। तो वो भी आपको पता है, वो टाइम के हिसाब से, अगर मैंने कोई ईएमआई स्किप करी, तो वो मेरे कितना सिबिल फाइनेंशियल स्कोर खराब हो बर्डन जाएगा। पड़ जाएगा, और मैंने कोई इन्वेस्टमेंट स्किप करी, तो कल को मेरी फ्यूचर प्लानिंग खराब हो सकती है।
तो मैं घर पे भी ये सब नहीं बता सकता, बट मैं खुद अकेले फ़ाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जितने भी लोग, कुछ चंद लोग मेरे सपोर्ट में हैं, उनके साथ मिलके। हुँ। नहीं, आई एम सॉरी, मतलब मैं भी गुजराती हूँ, पर गुजरात में ऐसा आम तौर पे नहीं होता था। ये कैसे हुआ वो मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि गुजराती ऐसे, मतलब ऐसा परसेप्शन नहीं है, वो ऐसे हाथ नहीं उठा देते, किसी को भी ऐसे नहीं मारते। क्या हुआ वो सोसाइटी का वर्ज़न मैं जानने की कोशिश करूँगी, क्योंकि उनके पास भी शायद, मुझे नहीं पता कि कुछ वजह रही होगी ऐसा करने की। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। पहले आपके आपके पास से जानते हैं। रादीप, आप एमपी से है, पन्ना से है, और आप भी सेम कंपनी में काम करते हैं, सेम एक्सपीरियंस आपके साथ भी हुआ। अभी फ़िलहाल आप क्या कर रहे हैं? कुछ जुगाड़ हो पाया है अभी तक? जुगाड़ तो नहीं है। पहले दिन हमारा जो है तो हम पूरे दिन पुलिस स्टेशन और पूरी नाइट पुलिस स्टेशन और 108 में हम हॉस्पिटल में गुजारा पूरा दिन। देन दूसरे दिन हम जो है तो फ्लैट ढूंढने के लिए निकले, क्योंकि मैंने एक सोच लिया था कि हम दोबारा उस जगह रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि यदि आज ये हो गया तो कल के दिन पुलिस नहीं रहेगी, कल के दिन वापस बहुत कुछ किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारी सेफ्टी और हमारी हेल्थ को और सभी चीज़ों को खतरा है, तो हम वहाँ वापस तो नहीं जा सकते। तो इस वजह से हम फ्लैट ढूंढ रहे थे। अब फ्लैट ढूंढ रहे हैं तो हर जगह का कंसर्न यही है कि बैचलर्स नहीं अलाउड है। मेरा क्वेश्चन ये है कि बैचलर्स अलाउड नहीं है, मगर क्यों? हमने ऐसा क्या कर दिया कि बैचलर्स अलाउड नहीं है? एक जगह मोदी जी बोलते हैं कि गुजरात आओ, वेलकम टू गुजरात, वेलकम टू गुजरात। हम यही सोच के आए थे। कहीं मैंने सुना था, अमिताभ बच्चन का एक ऐड था कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। तो वो गुजारो गुजरात तो इस तरीके से गुजारना तो मैं तो नहीं चाहूँगा। मुझे तो कहीं और अपॉर्चुनिटी कल मिले तो मैं कल चला जाऊँगा। मेरा एक्सपीरियंस गुजरात को लेके, गांधीनगर को लेके तो एकदम वर्स्ट है। मैं तो कभी नहीं चाहूँगा मुझे कोई बोले कि आप आओ या किसी और को रेफ़र करो, मैं कभी नहीं करूँगा। यदि इस तरीके से गुजराती और इस तरीके से सब करेंगे तो ये तो कहीं से जायज़ नहीं है मेरे हिसाब से तो। क्योंकि हमारे यदि क जगह कोई आता है ना, तो हम उनको खुद बोलते हैं कि हाँ, हम उनको बताते हैं कि ये ले लीजिए, ये है रूम, यहाँ पे रहिए। कभी किसी को आज तक बैचलर या उस चक्कर में कभी किसी को, यहाँ पर क्या चल रहा है, किसका क्या माइंडसेट है मुझे खुद नहीं। इतनी मल्टियाँ बनाई हैं, कोई घर है नहीं है। हम ढूँढने के लिए जाए तो कहीं मिलता नहीं है। पीजी का खाना बेकार है, पानी अच्छा कहीं मिलता नहीं है। तो मतलब क्या चाह रहे हो? हम या तो यहाँ पे सर्वाइव करें या तो बाहर रहें, या तो हम यहाँ से चले जाएँ। तो फिर सीधा-सीधा कैपेसिटी का जो भी कहीं-कहीं मुद्दा हो, बना दीजिए कि यहाँ पे केवल गुजरातियों के लिए है, बाहर के लिए अलाउड नहीं है। तो वो एक टैग लग जाएगा, तो हम कोई भी यहाँ पे जैसी वैकेंसी आएँगी हम अप्लाई ही नहीं करेंगे, हम आएँगे ही नहीं। सीधी बात है। हुँ। तो आना ही क्यों है? क्योंकि इस तरीके से रात में मैं कम से कम 2 घंटे सोसाइटी के साथ में बाहर बैठा रहा, लेके आए। मैं एकदम इनके साथ आराम से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था कि ठीक है, मैं आपके साथ बाहर चल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और इनको मैंने 1 दिन पहले जब रात में इन्होंने मुझे घेरा था, ये 4-5 7-8 से 10-12 लोग थे, मैंने उनको बोला था 1 तारीख को मैं खाली कर दूँगा। मतलब 10 दिन थे, क्योंकि मेरी जॉब रहती है। मैंने कहा दिन में मैं सोता हूँ, रात में जॉब करता हूँ, 10 दिन में खाली कर देंगे। कोई नहीं करेगा, मैं कर दूँगा खाली। क्योंकि मुझे ये बार-बार की भसड़ नहीं चाहिए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, मैं रात में जॉब करूँ, दिन में सोऊँ, तो मुझे एक सुकून के समय चाहिए। लेकिन यदि सुकून का समय नहीं है तो मैं खाली कर दूँगा। लेकिन ये दूसरे दिन फिर वही उन्होंने नाटक किया और बाहर बैठा दिया इनने। हमसे बोलते हैं कि मतलब कि आप बाहर बैठो, तो 2 घंटे इनके साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठा रहा आराम से, और मुझसे सही तरीके से बातें करते हैं, सारी चीज़ें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम, मैं आराम से बैठा रहा। लेकिन बात ये, मेरा कंसर्न ये है कि हम ठीक है, आप बोल रहे हो बैचलर्स, आप वो लीगली बात कर सकते थे ना, और हमसे क्यों? आप ओनर से बात करो। ओनर ने हमें रूम दिया, ओनर से बोलो कि ये चीज़ है, इस वजह से है और हमें इनको बाहर कराओ। ओनर बोल देंगे, हमें डिपॉज़िट दे देंगे, हम चले जाएँगे, हम कहीं और जाएँगे। लेकिन हमारे ओनर जब बोल रहे हैं कि नहीं, नहीं आपको रहना है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कौन होते हो? आप तो नहीं हो सोसाइटी जिसने आपने बनाई है, जो नहीं है, आप तो नहीं हो, आप तो चेयरमैन भी नहीं हो, आप तो कुछ भी नहीं हो, फिर भी आप बार-बार मुझे बोल रहे हो, चिल्ला के बोल रहे हो। इसके बाद फिर सारी चीज़ें ये होने के बाद फिर आप बोल रहे हो लास्ट में, जब यदि मेरा कोई मेरे साथ में मेरा रूममेट रहता, तो जब कहते हैं ना कि जब आपके साथ में कोई घर में रहता है ना, तो आपका एक परिवार होता है। हुँ। यदि मान लो मेरे साथ में अभिजीत रह रहा है, तो भाई उसका ज़िम्मेदारी जब तक मेरे साथ यहाँ पर, जब तक उसकी पूरी ज़िम्मेदारी मेरे साथ है, उसको मेरे साथ मेरे सामने मारोगे तो मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा क्या? ज़ाहिर-सी बात है, यदि मान लो चेयरमैन ने उन्होंने बोला कि वीडियो क्यों बना रहे हैं? यदि आपके घर के सदस्य को कोई मारेगा तो आप क्या करोगे? या तो बचाने जाओगे और दूसरा वीडियो बनाओगे, या तो आप या आप ऐसा कर दो कि आपके घर के सदस्य को कोई मारे, आप मत बनाओ वीडियो, मत बोल दो मारो। सामने से बोल, नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। तो मैं भी तो सेम उसके साथ कर रहा था, वीडियो बना रहा था कि उसको बच जाए, तो आप ताकि वीडियो बता रहे थे, इसीलिए आपको लात मार दी पेट में? इसीलिए मुझे लात तो एक वो है, एक कम है। हुँ। मैं बताऊँ, कम से कम 20 से 25 लोगों ने मुझे मारा, 20 से 25 लोगों को किसने मारा? मेरे इधर अभी भी दर्द कर रहा है, उन्होंने कम से कम 20 से 25 यहाँ पे
मारे हैं, थप्पड़ मारे, कंटाप मारे। तो मेरा इस तरह का था, हम सेल्फ डिफेंस में चाहो तो कुछ भी कर सकते थे। मैं कड़ा पहनता हूँ, वो भी कड़ा पहनता है, ठीक है, हम कर सकते थे। महिलाओं ने मुझे मारा, यदि मैं बस इसलिए था, शांत था कि यदि मैं कुछ करता हूँ, ठीक है, तो मेरे ऊपर उल्टे आरोप लगेंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मैंने वो सब सारी चीज़ें नहीं की, क्योंकि हम सेल्फ डिफेंस में कुछ भी कर सकते थे। लेकिन बस ये कि हमारे बैकग्राउंड में यहाँ कोई नहीं है, हमारे पीछे कोई नहीं है, तो फिर कौन साथ देगा। इसलिए हमें जो उस समय लगा कि ठीक है, जैसा हो रहा है वैसा चलने दो। એક ઇવન પરપ્રાંતીયનો મુદ્દો પણ ગુજરાતમાં ખબર નહીં બહુ ચર્ચામાં આવે છે એટલે આપણે રાજ્ય તરીકે પણ એ બહુ સ્પષ્ટતા કરવી પડશે કે આપણે ખરેખર એક દેશ તરીકે દેશના સ્વાભિમાન સાથે રહેવા માંગીએ છીએ કે પછી ગુજરાત બહુ અલગ છે, જેમ મહારાષ્ટ્રવાળા ઘણી બધી વાર એવું કહે છે કે ભાઈ અમારું મુંબઈ છે ને બાકી બધા આવેલા બહારના છે, કે જે તમિલનાડુમાં ઘણી બધી વાર ભાષાને લઈને ઇસ્યુ થાય છે, કે કર્ણાટકમાં બેંગ્લોરમાં ઘણી બધી વાર જોવા મળ્યો। ગુજરાતને જો આપણે એવું માનીએ છીએ કે આપણે એવા નથી અથવા આપણે એટલા રિજિડ નથી કે આપણે એટલા નેરો નથી, સંકુચિત નથી, આપણે દેશને સૌથી ઉપર માનીએ છીએ, તો પછી આ પ્રકારની ઘટનાઓમાં જે એમણે જે સવાલ કર્યો રાજદીપે, બહુ જ મોટી વાત છે કે ઘરના માલિક આપી રહ્યા છે ઘર, એટલે જો સોસાયટીને કોઈ પણ સમસ્યા છે ને કોઈ પણ સોસાયટીને કોઈ પ્રોબ્લેમ છે તો એણે ડીલ કરવાનું છે કે એણે વાત કરવાનું છે ઘરના મકાન માલિક સાથે, નહીં કે એ લોકો સાથે કે જે લોકો અહીંયા રહે છે। आपसे मुझे लास्ट में सिर्फ यही जानना है कि सिर्फ आपके साथ, मतलब आप दोनों के साथ ये हुआ कि बाकी भी लोग बैचलर्स वहाँ पे रहते हैं वहाँ सब? पर जितने बैचलर्स थे उन सबको निकाल दिया है, कुछ अभी रह रहे हैं, उनको पता नहीं है। जैसे जैसे उनको पता चल रहा है सबको निकालते जा रहे हैं, लड़कियों को भी निकालते हैं। अच्छा, बैचलर लड़कियां भी नहीं चाहिए? हाँ, उनके एक्चुअली हमारे सामने जब मैं वहाँ बैठा था, लड़कियाँ ऑफिस ख़त्म करके आईं, तो उन्होंने लड़कियों को सभी को रोक लिया, बोले नहीं जाएंगे। उनके साथ महिलाएं डील कर रही थी कि नहीं जाने देंगे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उनके घर वालों ने बात की, तो उनको रात का वक्त दिया था कि रात में आप अंदर चले जाओ, सुबह उन सबको भी निकाल दिया। तो हम ये बोल रहे हैं कि आप ये कर रहे हो, आप लीगल एक्शंस लो, उनसे बात करो आपके ओनर से। यूँ तो मीन्स लाइक जैसे संविधान हमें अधिकार देता है, हम कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी कुछ भी वो है नहीं है, जब तक हमने कोई भी गलती नहीं की। यदि हमने कुछ गलत किया तो आप उसके लिए पुलिस को बुला सकते हो, हम सामने रात में साउंड बजाते हो, हम कोई पार्टी वार्टी करते हो, हमने तो कभी कुछ नहीं किया। तो अल्कोहल लेते हाँ, हैं कोई, मतलब आपके पास कुछ कोई भी नहीं शराब है। पीता हाँ, है? कोई हमने आज तक जीवन में नहीं पी कभी। अच्छा, आपने हाँ, शराब ही नहीं हाँ, पी? कभी ओके। नहीं पी। तो ये सारी चीज़ें जब की नहीं हो, फिर उस प्रकार से तो हमने, तो हमारी गलती क्या है? सिंपल सा हमें एक आंसर चाहिए, गलती क्या है? बस गलती बता दीजिए, हमारी गलती है, देन हम समझ में आता है। गलती नहीं है तो फिर किस बात पे? हम्म। और पुलिस ने सहयोग पुलिस दिया था आपको? तो उनका एक ही है कि ये प्रॉपर्टी केस है, प्रॉपर्टी ओनर वो लोग बात कर रहे हैं, और प्रॉपर्टी से बात करो, रेवेन्यू वाला हो रेवेन्यू जाएगा। है, प्रॉपर्टी, वो पुलिस आती है। तो उस दिन तो हमें जो बचाया वो पुलिस ने बचाया, लेकिन पुलिस के सामने भी हमें कम से कम 5 से 10 मिनट मारते रहे वो लोग। अच्छा, ने कुछ पुलिस भी थी नहीं और मारते रहे? हाँ, वो पुलिस ने लास्ट में जीप के अंदर किया, वो एक अलग हो गया, लेकिन फिर भी पुलिस पकड़े हुए थे, फिर भी वो मारते रहे। तो पुलिस ने कुछ भी नहीं किया वहाँ पे कि उनको रोके, कुछ भी नहीं किया। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें हैं, सोसाइटी के कैमरे बंद कर दिया, लाइट बंद कर दी, सब कुछ सारी चीज़ें कर दिया कि एविडेंस ना आए। तो ये गलत है। जहाँ से अब यदि ऐसा कुछ करेंगे तो फिर तो नहीं चाहूँगा, मुझे कोई बोले मैं तो यही सजेशन करूँगा कि नहीं भाई, नहीं रहना यहाँ पे, गलत है ये। ठीक है। अभिजीत, और कोई मुद्दा हमारी चर्चा में छूट गया हो, आपको लगता है आप ऐड करना चाहते हैं? क्या ये हुआ तो था? जो हमने कवर करा ये मेजर केसेस थे इंसिडेंट के। अगर हम माइनर्स में घुसें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम पे झूठे आरोप लगाना। वो हमें कहते हैं कि तुमने सोसाइटी में चोरी करी है, सोसाइटी में तुम रात में लोगों के घर की बेल बजा के डिस्टर्ब करते हो, तुम उनके गेट के बाहर से जूते चप्पल चुरा लेते हो, अच्छा। और भी गेट खोल के दारू पीते हो ताकि तुम दूसरों को चिढ़ा सको कि हम तो यहाँ रह रहे हैं, हमारे पास एग्रीमेंट है, तुम कुछ नहीं कर सकते, जबकि इसका कोई प्रूफ नहीं है किसी के पास भी। और हम मेडिकल रिपोर्ट्स के लिए, टेस्ट के लिए भी रेडी हैं। और उसके बाद लड़ाई होते समय हमारे बहुत सारी पर्सनल प्रॉपर्टी, ये कपड़े फटे हैं जो उसी दिन से पहने हुए मैंने, ये कपड़े वपड़े फाड़ दिए। उसके बाद मारा पीटा अलग से, ये पूरी चोटें लगी हुई हैं हाथों में। और मेरी पगड़ी को भी मारा था, पूरी पगड़ी मेरी ऑलमोस्ट खुल गई थी। तो ये एक रिलीजियस डिसरिस्पेक्ट भी हो गया है, ठीक है। और उसके बाद मेरे गले में चैन थी सिल्वर की, वो भी छीन ली, वो भी पता नहीं कहाँ वहाँ गिरी है कि किसी ने ज़बरदस्ती छीन ली है। इतने सारे लोग, इतने सारे हाथ थे, स्पेसिफिकली मुझे फट्टों से, हाथों से, घूंटों से सबसे मारा है।
और मेरी गाड़ी भी वहाँ पार्क थी। जब मैं अगले दिन बहुत छुपा के उसे लेने गया अंधेरे में कि गाड़ी ज़रूरी है फ्लैट्स वगैरह ढूंढने के लिए, तो उसकी भी हवा निकली हुई थी और स्क्रैचेस पड़े हुए थे और दोनों टायर पंचर थे उसके भी। तो ऐसे बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब अगर हमने नोट एक एक पॉइंट का बनाया, अगर हम करने जाएं तो शायद ये इंटरव्यू 10-15 मिनट और खिंच जाएगा अगर हम एक एक पॉइंट को रखें जो पास मेरे साथ 4 महीनों में हुआ है पर्टिकुलर इस सोसाइटी को लेके। और ना सिर्फ पुरुष और ना सिर्फ वो वकील जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, बट सोसाइटी के मेन मेंबर्स, कमिटी मेंबर्स ही वो मेन थे। ये पूरा फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ उन्होंने एडवोकेट की सलाह से, क्योंकि वो अपने अपने जो राइट्स हैं, अपने जो पावर है उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि उन सब में एक लीगल बंदा, एक एडवोकेट था जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसको हम जाएंगे एडवोकेट के पास, अगर हम केस फाइल करेंगे, अगर वो सुन रहे हैं तो सुन लें कि हम केस फाइल करेंगे, हम हाई कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाने की ज़रूरत पड़ी तो भी जाएंगे, क्योंकि हम गलत नहीं है और हमारे खिलाफ आपके पास कोई एविडेंस नहीं है गलती का। तो हम जाएंगे, भले हमें शहर स्विच करके फिर आना पड़े, हज़ारों रुपए फ़्लाइट में खर्चे हों, चाहे जो भी हो, लेकिन हम रुकेंगे तो नहीं। अब यहाँ से अगर स्टार्ट हो गया तो अब तक मैं चाहता तो अपने सेल्फ डिफेंस में ये 1.25 किलो का कड़ा है, ये अगर मैं मार देता किसी के सर पे तो उसका सर वहीं खुल जाता। ये बाज मैं हमेशा लगा के रखता हूँ अपने साथ, ये मैं मार देता तो गले की नस फट जाती, आँख फट जाती, आँख में से खून खून की धाराएं बहती। लेकिन मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ भी यूज़ नहीं करा। 1.5 लीटर की बॉटल थी स्टेनलेस स्टील की मेरे हाथ में लगातार, एक बार ऐसे बस घुमाना था, तो वहाँ पे कोई भी ट्रेजेडी हो सकती थी इससे बहुत बड़ी। लेकिन मैंने प्रशासन को ध्यान में रखते हुए और अपनी टीचिंग्स को ध्यान में रखते हुए वो सब एक्शंस नहीं लिए। मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, बट अब तो ये बात नहीं रुकने वाली है और ये बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है, सिर्फ लॉ से और एक क्रिमिनल एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है मेरे, स्पेसिफिकली मेरे लिए। तो अब तो बहुत बुरा ही होगा जिसके साथ भी होगा, और स्पेसिफिकली मैं ये अपील करूँगा कि वो एडवोकेट का लाइसेंस रद्द किया जाए या उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और इन्वेस्टिगेशन करी जाए। और बाकी और स्पेशली उसकी वाइफ भी, उसकी वाइफ जान के बीच में आती थी, बाकी तो लेडीज़ थी ही, बट उसकी वाइफ भी लीडर थी जैसे वो था, और वो जान के हमारे बीच में आती थी। और फिर मुझके मेरे पास कुछ वीडियोस भी पड़ी हैं, हमारे पास जितने प्रूफ्स कलेक्ट हुए हैं, कुछ हमारे पास अभी भी पड़े हुए हैं, हमने कहीं ना कहीं से सोर्स ला के कलेक्ट करे हैं, तो उनमें ये दिख रहा है कि वुमेंस भी कितनी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। इवन जो उनके 18+ बच्चे भी हैं सोसाइटी में, वो भी, उन्हें भी नहीं समझ आ रहा कि ये हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, बस हमारे माँ बाप कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। तो वो भी मुझे पता नहीं बड़े होके क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बट मैं चाहता हूँ कि शायद उनको भी कभी फेस करना पड़े तो उन्हें समझ आएगा कि हमने कितना गलत किया था। मैं चाहती हूँ कि ये किसी को फेस ना करना पड़े, ताकि मतलब लोगों को वैसे ही समझ में आ जाए, किसी को फेस ना करना पड़े, क्योंकि किसी के भी साथ होता है वो बहुत बुरा होता है, और ज़्यादातर बहुत निर्दोष लोगों के साथ होता है। जैसे कि आपके माँ बाप ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया होगा, फिर भी आपके साथ हुआ, तो इसीलिए ऐसा नहीं होता। पर खैर, हम अपेक्षा रखते हैं कि सही में इन सारी चीज़ों को सुन के बदलाव आए, क्योंकि मैं आपको ये अश्योरेंस दे सकती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे पैदा हुई, पली बड़ी यहाँ पे, मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं सारे गुजरात में, पूरे गुजरात में घूमती हूँ। तो आम गुजराती ऐसा नहीं है। ये जो हुआ वो सही में बहुत एक्सेप्शनल केसेस है, और वो नहीं होने चाहिए, कभी नहीं होने चाहिए। और इसीलिए मैं गुजराती हूँ, और इसीलिए ये गंभीरता से बताती हूँ ये बात कि कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सही में गुजराती ऐसे नहीं हैं। पर आपके साथ जो हुआ वो ऑब्वियसली आपके दिमाग में वो एक अलग परसेप्शन खड़ा करेगा, और उसके खिलाफ भी मैं नहीं बोल रही, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको छिपा नहीं सकती कि नहीं नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं, तो ये तो एक्सेप्शनल है तो हम नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं है। इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि ये रिपीटेशन ना हो इस चीज़ का। આખી આ વાતને હું જો એ કન્ક્લુઝનમાં લઉં કે સોસાયટીનું જે પણ વર્ઝન હોય, બહુ જ બધી સોસાયટી મોટાભાગે શહેરોમાં એવા નિયમો લઈને આવી રહી છે કે ભાઈ અમારા બાળકો પર ખરાબ અસર પડે ને એટલે અમે બેચલર્સને ઘર નથી આપવા માંગતા, અને જો સોસાયટી આ પ્રકારના નિયમ બનાવી રહી છે તો એ નિયમો દરેક માલિક સાથે લેખિતમાં વાત કરો, કેમ કે ઘરના માલિક આપી રહ્યા છે ઘર ભાડે, એટલે આ લોકો આવીને જબરદસ્તી કોઈના ઘરમાં નથી ઘૂસી રહ્યા. અને આટલી સ્પષ્ટતા જો શરૂઆતથી નહીં કરવામાં આવે, સોસાયટીના અંદરના ડિસ્પ્યુટમાં જો બહારથી આવેલા માણસો પીસાતા જશે, તો આપણે એક એડવર્ટાઇઝમેન્ટ બનાવવા માટે કે કુછ દિન તો ગુજારીએ ગુજરાતમાં, આ બનાવવા માટે કરોડો રૂપિયા ખર્ચાય છે, અને એ એક માર્કેટિંગ, તમારી એક ઘટનાથી એક માણસ પર જો એવી અસર થાય, અને બીજું કે એકચ્યુઅલી માર્કેટિંગ નથી, ગુજરાતીઓનો સ્વભાવ આવો નથી રહ્યો. એ અહીંયા રહેતા મોટાભાગના માણસોને ખબર છે કે કેટલો પ્રેમાળ સ્વભાવ રહ્યો છે મોટાભાગે, તો શું કામ સમયની સાથે આવો પરિવર્તન આવી રહ્યો છે, અને આપણે કેમ કૂવાના દેડકા બનવા માંગીએ છીએ. અને એ ગુજરાતીઓ જેના પોતાના બાળકો અમેરિકામાં જાય છે,
એ ગુજરાતીઓ કે જે દર બીજા ઘરમાંથી કોઈને કોઈ છોકરું વિદેશમાં છે અને આપણે એવી ફરિયાદ કરીએ છીએ કે ત્યાંના લોકો આપણા લોકો સાથે ખરાબ વર્તન કરી રહ્યા છે. આપણા બાળકો જ્યારે બહાર જાય કોઈ જગ્યાએ ભણવા માટે, નોકરી માટે, કોઈ પણ જગ્યાએ, ત્યારે એમને ઘર નહીં મળે તો, એમની સાથે ખરાબ વર્તન થશે તો, આપણા બાળકને કોઈ મારશે તો. એ જ્યારે થાય છે, અમેરિકામાં થતી ગુજરાતીની હત્યા પર આપણે આટલી બધી બૂમો પાડીએ છીએ, ત્યાં થતા ભેદભાવો પર આપણે આટલું બધું ચિંતા વ્યક્ત કરીએ છીએ, તો આપણે ત્યાં જ્યારે કોઈ મહેમાન આવે છે, આપણે ત્યાં કોઈ આવે છે, તો આપણે એની સાથે આવું વર્તન કેમ કરી રહ્યા છીએ? અપેક્ષા રાખીએ કે પોલીસ આ બધી વાતોને બહુ ગંભીરતાથી લે, કેમ કે ગિફ્ટ સિટી એ માત્ર કોઈ એક જગ્યા નથી, એ સપનું છે અને ગુજરાતીઓનું ગૌરવ છે. પણ એ ખાલી ઇમારતો બનાવવાથી ગૌરવ ઊભું નથી થતું, એની સાથે સૌહાર્દવાળા સંબંધો પણ આપણે રાખવા પડે ને આપણી બધાની જવાબદારી છે. એ જવાબદારી આપણે ન ચૂકીએ એવી અપેક્ષા. મને નથી ખબર કે આ લોકોને હવે શું મદદ મળવાની છે બંનેને, પણ એ જે છબી લઈને જશે ગુજરાતની બહાર, એ ગુજરાતીઓ માટે સારી વાત નથી. નમસ્કાર. બનાવ એવો છે કે અમારી સોસાયટીની અંદર બેચરલ અને પીજી ન ચલાવવા માટે સોસાયટીની બહુમતીથી ઠરાવ થયેલો છે અને તેમ છતાં અમુક ઓનરોએ એમના ઇન્વેસ્ટ કરી અને વધુ બેચરલ વધુ ભાડું આપતા હોય, જેથી કરીને સોસાયટીના પેલા નિયમને મનમાની કરી પોતાની મનમાની ચલાવતા હોય અને પોતે બિંદાસથી અમે લોકો ભાડે આપતા હોય છે ફ્લેટ. અને એની અંદર રાત્રે છોકરીઓ અલગ અલગ એમના બોયફ્રેન્ડ બોલાવતી હોય છે, છોકરાઓ પણ છોકરીઓને બોલાવતા હોય છે, ડ્રગ્સ લેતા હોય છે, દારૂ લેતા હોય છે, રાત્રે મોડા સુધી ડીજે પાર્ટી કરતા હોય છે. આવી વારંવાર ઘટના બનતી હોય છે, જેથી કરી અને તેમ છતાં અમે એમને કહીએ છીએ કે તમે મકાન ખાલી કરો, તેમ છતાં એ લોકો ઓનર અને બેચરલ લોકો વારંવાર સોસાયટી ઉપર આક્રમણ કરતા હોય છે, હુમલા કરતા હોય છે, ખોટી રીતે પોલીસ બોલાવતા હોય છે અને એવું કહેતા હોય છે કે અમે કેમ ન રહીએ. આવી વારંવાર અમને ધમકીઓ આપતા હોય છે. ઓકે, તો રાત્રે જે બબાલ થઈ હતી એ શાને લઈને થઈ હતી? આ બેચરલના મુદ્દાને લઈને થઈ, પીજી ગેસ્ટ હાઉસ લઈને થઈ. એટલે આખી સોસાયટીમાં મતલબ બધા જ મેમ્બર્સો બધા ભેગા થયા હતા? હા, સોસાયટીના તમામ મેમ્બરો છે અને ત્રાહીમાન જ છે આ લોકોથી, કેમ કે જે ઓનર છે એ લોકો માત્ર ભાડું વધુ લેવા માટે વારંવાર સોસાયટીના નિયમનું ઉલ્લંઘન કરતા હોય. અચ્છા, પણ આમાં તમે જે રેન્ટ પર જે રહે છે સભ્યો, એના ઉપર જે હુમલો થયો છે, એ લોકોના આક્ષેપો છે કે હુમલો કરવામાં આવ્યો અમારા રાતે સીસીટીવી બંધ કરીને ને બધા આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે. તો એને કોઈ વ્યક્તિ પોલીસ પણ હાજર હતી, એવો કોઈ હુમલો થયો જ નથી. ઇન્ફોસિટીની 3 થી વધુ PCR વાન પણ ત્યાં હાજર હતી, એટલે એવો કોઈ બબાલ થયો, કોઈ હુમલો થયો, એવું કોઈ ઘટના બની જ નથી બિલકુલ. અચ્છા, ઓકે. અને તમે સોસાયટીમાં ચેરમેન છો કે કમિટી મેમ્બર તરીકે છો? નહીં, ચેરમેન નરેશભાઈ પંચાલ છે. અને તમે? હું પૂર્વ ચેરમેન છું. અચ્છા, પૂર્વ ચેરમેન છો તમે. ઓકે. પણ આ જે ભાડા પર જે વ્યક્તિઓ રહે છે એ લોકો કહે છે કે અમે રેન્ટ એગ્રીમેન્ટ પણ છે અમારી પાસે, પોલીસ વેરિફિકેશન પણ છે, NOC પણ છે. એવું કોઈ પોલીસ વેરિફિકેશન હોય કે કોઈ રેન્ટ એગ્રીમેન્ટ હોય કે એવા કોઈ ડોક્યુમેન્ટ હજુ સુધી અમારી જૂની કમિટીને કે નવી કમિટીને આવા લોકોએ હજુ સુધી કોઈ ડોક્યુમેન્ટ જમા કરાયા જ નથી. ઓકે. હા, અને અમને આવા કોઈ ડોક્યુમેન્ટ એમના મળ્યા પણ નથી અત્યાર સુધી.